हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। जितना अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। सॉल्व द इक्वेशन z स्क्वायर इक्वल टू z कॉन्जुगेट वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। दैट मीन्स हमें क्या करना है, z निकालना है, z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर में ये एक इक्वेशन गिवन है, दैट इज कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है। उसको सॉल्व करके हमें z का जो भी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगा वो z फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। So first of all, the equation is given, that is z square is equal to z conjugate, and z is given, that is x plus iy. So in the place of z we will put x plus iy. So that simply implies that x plus iy whole square is equal to z conjugate. So z is equal to x plus iy, then z conjugate is nothing but x minus of iy. We know this fact, we have studied this concept in the previous classes. So in the place of z conjugate I am putting x minus iy. Now solving it, that is x square plus iy whole square plus 2 times ixy is equal to x minus iy, and this is x square, and because iy whole square is nothing but I square y square, where I square is equal to minus of 1, we again know this fact. So in the place here we will put minus of y square plus I 2xy is equal to x minus iy. So this complex number and this complex number is equal if this equation to be satisfied. And from here we also know this fact that if two complex numbers are equal, then the real part of both complex number must be equal, and the same time imaginary part should also be equal. From here we can easily write that x square minus y square must be equal to x, and 2xy, that is imaginary part, must be equal to imaginary part, and that is here minus of y. So if you see here, it has two variables x and y, so we cannot solve it easily. But this part can be solved easily, because here we can easily say that it is nothing but 2xy plus y equal to 0. Okay, 2xy plus y equal to 0, and from here we can write y is common ले लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा y into 2x plus 1 equal to 0, and from here we get y equal to 0 and x equal to minus half. So y की दो वैल्यू, y की एक वैल्यू आ रही है 0 और x का वैल्यू आ रहा है minus 1/2. क्लियर? सो अब ये जो इक्वेशन गिवन है अपने पास, वहां पे सबसे पहले तो मैं y इक्वल टू 0 पुट करूंगा और वहां से सॉल्व करूंगा, और फिर x इक्वल टू माइनस 1/2 भी पुट करके y निकालूंगा। तो देखते हैं कितने सॉल्यूशन आते हैं। सो वी विल राइट व्हेन y इक्वल टू 0, in this equation we will put y equal to 0, so it becomes x square equal to x, and it can be written as x square minus x equal to 0, and that can be written as x into x minus 1 equal to 0, and from here we get x equal to 0 comma 1. So when y equal to 0 we get x equal to 0 and 1. So when y equal to 0 we have x equal to 0 and 1. Okay, x equal to 0, y equal to 0, x equal to 1, y equal to 0. These are two solutions. Similarly, when x equal to minus 1/2, then we can also find y value. So x equal to minus half, then when x equal to minus half, we put minus half here. So minus half square minus y square equal to minus half, and solving it we get 1/4 minus y square equal to minus half, that is minus y square equal to minus 1/2 minus 1/4, that is minus y square equal to minus 1/2 minus 1/4 is minus 3/4. Minus and minus got cancelled, so from here we get y equal to plus minus root 3/2. So that simply implies that when x equal to minus 1/2, y equal to plus
root 3 by 2 or x equal to minus 1 by 2, then y can also be minus root 3 by 2. So the two solutions are also we got from here. So two solutions and these are two solutions. So there are total 4 solutions available of this equation, and they are, so the answers are, first, suppose the first root is z1, so that is x plus iy, where x is 0 then y is 0. So first solution is 0 plus 0i. The second solution, that is suppose z2, उसको नाम दे देते हैं, वो कितना होगा, x is 1 y is 0, so 1 plus 0i. z3 is the third solution, and that is minus 1 by 2 plus root 3 by 2i, minus 1 by 2 plus root 3 by 2i. And the fourth solution, that is z4, suppose, so that is minus 1 by 2 minus root 3 by 2i, minus 1 by 2 minus root 3 by 2i. So these are the answers of z square equal to z conjugate. Okay. So these are the 4 complex numbers which will satisfy this given equation. So now this problem is solved. एंड इसी तरीके से आप इस टाइप के जो गिवन इक्वेशन वाले प्रॉब्लम होते हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द सेकंड प्रॉब्लम इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z plus 1 अपॉन iz plus 1 इज -2. ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना. जैसे मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको डिवाइड कर दें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और वो उसमें z क्या है, वेरिएबल है, ठीक है. z की वैल्यू चेंज हो रही है, ऐसा समझिए, वेरिएबल है z. सो द क्वेश्चन इज इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस ऑफ 2, देन सो दैट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z इन द आर्गेंट प्लेन इज ए स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट -2 होगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो जो है वो कहाँ लाई करेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा होगा. ये प्रूफ करना है हमें, समझ रहे हैं बात. तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे z को लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये हमें लेट कर लेना चाहिए. और फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट कर लेना चाहिए किस फॉर्म में, x और y के फॉर्म में. और फिर इसका इमेजिनरी पार्ट भी हम निकाल सकते हैं. तो यूजली हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मैं 2z plus 1 अपॉन iz plus 1 ये निकालता हूँ. तो ये हो जाएगा 2 into x plus iy plus 1, that is 2z plus 1 अपॉन I into z, that is x plus iy plus 1. इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे. तो ये हो जाएगा हमारा 2x plus 1, बिकॉज दिस इज 2x plus 2iy plus 1 divided by this is ix plus I into y, that is I square y plus 1, and this can easily be written as 2x plus 1. This can be written as, in the next step we can easily write it as 2x plus 1 because x is real and 1 is also real, so the real part will be added to real part, 2x plus 1. And imaginary part having only this part because 1 having imaginary part 0, so we can easily write 2iy divided by this is ix and this is I square y. So I square is -1, so we can write it as minus y plus 1 plus ix. Okay, we can easily write like this. So that is 2z plus 1 upon iz plus 1 is like this. But in this case, we cannot find easily the imaginary part of this complex number. So we know how to divide the complex number. So first of all, we can easily write it as 2x plus 1 plus 2iy divided by minus y plus 1 plus ix. Okay, and we will multiply the numerator and denominator by the conjugate of this complex number. So this is minus y plus 1 minus of ix divided by minus of y plus 1 minus of ix. Okay. So in the next step we can easily
do some calculation part in this, and then we can easily find the imaginary part of this complex number. So first remember this, the imaginary part of this is given as minus of 2 in this question. So now I am removing this question from here, but remember it that imaginary part of 2z plus 1 upon iz plus 1 is equal to minus 2, that is given in the problem. So this can be written as 2x plus 1 into minus y plus 1, 2x plus 1 into minus of y plus 1 minus ix times 2x plus 1 plus 2iy into minus of y plus 1 and 2iy, so it is 2iy multiplied with minus ix plus 2iy multiplied with minus of ix divided by, this is nothing but minus y plus 1 whole square minus y plus 1 whole square minus ix whole square. Okay, this is easily written. Okay, now we can easily write it as, this is 2x plus 1 into minus y plus 1, so it is 2x into minus y, that is minus 2xy plus 2x into 1, that is 2x minus y plus 1. So easily you are doing calculation, minus 2x square I minus ix, okay, plus 2iy into minus y, that is minus of 2iy square plus 2iy minus 2i square x into y divided by, we can easily do the calculation part of here and then we can simplify it. Minus y plus 1 whole square is y square plus 1 minus 2y, that is a minus b whole square minus I square x square. Now we will put I square is equal to minus of 1 where it will present. Okay, I square कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसकी जगह माइनस लिख लूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2xy प्लस 2x minus y plus 1 minus 2x square I minus ix minus 2iy square. तो पहले लिख ही लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है. और ये आई स्क्वायर की जगह यदि माइनस 1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2xy डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाने वाला है आपका वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 है तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा. यहाँ माइनस 2xy और इधर प्लस 2xy वो कैंसिल आउट हो जाएगा. और आपको देखना है कि क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है. तो यहाँ से तो 2x माइनस वाई प्लस 1 है और बाकी में सब में आई अवेलेबल है. समझ रहे हैं बात. तो यहाँ से रियल पार्ट इसका कितना है 2x माइनस वाई प्लस 1, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस आई टाइम्स 2y माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2y स्क्वायर, ये आपको मिलने वाला है ऊपर i के साथ. और नीचे कितना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये हमें मिलेगा. अब इसको यदि ध्यान से देखें तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस आई टाइम्स 2y माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1. ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जो क्वेश्चन में गिवन था. ठीक है, 2z प्लस 1 अपॉन आई जेड प्लस 1 जो भी गिवन था. इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ये रहा. समझ रहे हैं, ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में माइनस ऑफ 2 दिया हुआ है. क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कितना आता है माइनस 2 है. इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम दैट दिस इज माइनस ऑफ 2. So according to the question, imaginary part of I think 2z plus 1 upon iz plus 1 is equal to minus of 2, and that simply implies that this is minus of 2, that is 2i, because this is the imaginary part of this complex number which we have find it here.
that is 2y minus 2x square minus x minus 2y square divided by x square plus y square minus 2y plus 1 equal to minus of 2, and that is 2y minus 2x square minus x minus 2y square equal to minus 2 times x square plus y square minus 2y plus 1. Now if you simplify it, we get, this simply implies that 2y minus 2x square minus x minus 2y square equal to minus 2x square minus 2y square plus 4y minus 2. So here we can easily say that minus 2x square minus 2x square will be cancelled, minus 2y square minus 2y square will be cancelled, and from here we get, if you take this as 2y minus x minus 4y plus 2 equal to 0, and from here we get minus x minus 2y plus 2 equal to 0, and that is nothing but x plus 2y. If you take minus sign common, so it is x plus 2y minus 2 equal to 0, and this can also be written as x plus 2y minus 2 equal to 0. This is the equation of a straight line. Okay, x plus 2y minus 2 equal to 0 किसका इक्वेशन होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन. The next problem is, the question is, if modulus of z square minus 1 is equal to modulus of z square plus 1, then show that z lies on imaginary axis. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसी तरीके से लेट कर लोगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम जब भी दिखे आपको तो क्या करना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेट करना है, और x और y में जो इक्वेशन आना चाहिए वो एक लाइन का इक्वेशन आना चाहिए, और इमेजिनरी एक्सिस को उसको कहते हैं y एक्सिस को, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 लाइन, है ना. तो इसको सॉल्व करने से हमें क्या आना चाहिए, x इक्वल टू 0 लाइन यदि आ जाता है तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो z कहाँ लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस. इमेजिनरी एक्सिस किसको कहते हैं, y एक्सिस. आर्गेंट प्लेन में इसको इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है. ठीक है ना, y एक्सिस को. और इसका यदि हम 2D ज्योमेट्री में इक्वेशन की बात करें तो x इक्वल टू 0 लाइन इसका इक्वेशन होता है. ठीक, तो इसी तरीके से हम आज आगे स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास वो इक्वेशन गिवन है, दैट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 1. सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास आएगा मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, z इज x प्लस आई वाई, सो इट इज x प्लस आई वाई होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, that is z is x plus iy, so modulus of z is nothing but root under of x square plus y square. So modulus of z square कितना हो जाएगा, x square plus y square हो जाने वाला है. So modulus of z का होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो x square plus y square plus 1. यहाँ से देखते हैं क्या आने वाला है, इसको सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा modulus of x square plus i y होल स्क्वायर plus 2ixy minus 1 equal to x square plus y square plus 1, and from here we get x square minus y square, क्योंकि i square कितना होता है -1, तो यहाँ माइनस वाई स्क्वायर, और ये -1 है क्योंकि रियल पार्ट तो ये एक्स वाई रियल नंबर है तो 1 भी रियल नंबर है, और इधर i में कौन सा पार्ट बचा हुआ है, 2ixy, दैट इज 2xy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1. अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1. अब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, यहाँ से हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट हटाना है, जिससे कि हम x और y में एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सके. तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो व्हाट विल वी गेट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर is equal to x square plus y square plus 1 whole square.
दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर किया, तो इधर से तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, इधर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इम्प्लाइज दैट दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर. The formula of a minus b minus c whole square plus 4x square y square, that is 2xy whole square. This can be written as equal to x square whole square plus y square whole square plus 1 square plus 2x square y square plus 2y square plus 2x square. Okay. So now from here you can see here x square whole square will be cancelled, y square whole square will be cancelled, 1 square y square, that is 1, will be cancelled, and we can easily simplify it. Minus 2x square plus 4x square, that is 2x square y square plus 2y square minus 2x square is equal to 2x square y square plus 2y square plus 2x square. Again 2x square y square, and this will cancel out. 2y square and 2y square will cancel out, and this will give us minus 2x square को उधर की तरफ ले जाएंगे तो आएगा 4x square equal to 0, and from here we get x equal to 0, and this is nothing but imaginary axis, y axis. Okay, x equal to 0 is the equation of y axis, and that is imaginary axis. तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है. That means z must lie on this imaginary axis. And such type of problem can be done easily. The fourth number problem is let z1 and z2 are two complex numbers such that z1 conjugate plus I z2 conjugate is equal to 0, and argument of z1 into z2 is equal to pi, then find argument of z1. ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो देखिए यहाँ पे, और दो चीजें गिवन है क्वेश्चन में. क्या क्या गिवन है, एक तो दिया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 into z2 is equal to pi, and it is also given that z1 conjugate plus I z2 conjugate is equal to 0. So from here we can easily deduct something, that is z1 conjugate. This simply implies that z1 conjugate is equal to minus of I z2 conjugate, लिख सकते हैं. और यहाँ से देखते हैं तो यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे, ठीक है ना, यदि टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेम देन देयर कॉन्जुगेट आर आल्सो सेम, सो वी कैन टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड. तो ये हो जाएगा z1 कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ I z2 कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट, इसके कॉन्जुगेट ले लिया. यहाँ से आएगा z1 कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट इज नथिंग बट z1. ओके, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है. z कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ I कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट. और ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग, आपको पता होना चाहिए. z1 कॉन्जुगेट z1 z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट, और साथ ही साथ z कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट z के बराबर होता है. तो ये दोनों प्रॉपर्टी इस स्टेप में मैंने लगाया है, और इससे क्या हो जाएगा, z1 इज इक्वल टू माइनस I का कॉन्जुगेट प्लस I होगा, ठीक है, और z2 कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट इज नथिंग बट z2 I z2. So z1 is equal to I times z2, and from here we can also say that यदि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 कितना होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ I z2 के बराबर होगा. क्लियर, I times z2 के बराबर होगा. और इसका साफ साफ मतलब निकल जाता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 जो होगा वो होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ I प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. इसको मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए. एक स्टेप और लिख लेते हैं, क्योंकि एक बात तो हमें पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ I कितना होता है, पाई बाई 2. I का आर्ग्यूमेंट, I कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होता है, y एक्सिस में पॉजिटिव साइड में, तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है, पाई बाई 2. ये याद रखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, और इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं. साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी साइड में दिया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 कितना है, पाई है. तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी है, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये कितना रहेगा? 5। तो इसका मतलब है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना होता है? पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, यानी तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आप लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना है? पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इसको 1 इक्वेशन कह रहे हैं हम लोग, ये वाला इक्वेशन, और ये 2 नंबर इक्वेशन है। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की जगह पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 लिख देता हूँ। तो दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कैन आल्सो बी रिटन एज पाई बाय 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की जगह लिख देते हैं पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 2 से, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, एक्चुअली आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 को इधर ले आते हैं तो 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। पाई बाय 2 प्लस 5 इज 3 पाई बाय 2 एंड फ्रॉम हियर वी कैन इजीली राइट दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 divided by 2 and that is 3 pi by 4 is the answer। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 निकल गया। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है, जो कि जिसमें कुछ इक्वेशन गिवन हो और इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वो JEE मेन के अंदर बहुत बार पूछा गया है। सो यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ। इसको खुद से आप एक बार सॉल्व करिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं इसको, ठीक है। The problem number 5 of the complex number, which is given that if Z1, Z2, Z3 are complex numbers such that modulus of Z1 equal to modulus of Z2 equal to modulus of Z3 is equal to modulus of 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3 is equal to 1, then find the value of modulus of Z1 plus Z2 plus Z3। ये प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसी को कहीं ना कहीं हमें यूज करते हुए इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए किस तरीके से ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ Z1 कितना है? 1 है। मॉड ऑफ Z2 भी कितना है? 1 है। मॉड ऑफ Z3 भी कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो यदि मॉडुलस ऑफ Z1 1 है, इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर जो होगा वो भी 1 होगा। क्लियर? लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये तो रियल नंबर है, तो बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर यदि 1 है, इसका मतलब Z1 कॉन्जुगेट 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट। ये फॉर्मूला है, क्योंकि मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर की जगह पे मैं लिख रहा हूँ Z1 कॉन्जुगेट, और इसलिए मैं लिख सकता हूँ Z1 कॉन्जुगेट की जगह 1 by Z1 लिख सकता हूँ। क्लियर? Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 by Z1 होगा। सिमिलरली सभी में लिखा जा सकता है। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ? Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 by Z2 एंड Z3 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 by Z3। ओके, लिखा जा सकता है। क्लियर? क्योंकि सेम ही इंफॉर्मेशन यहाँ भी है, Z2 के लिए भी, Z3 के लिए भी। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ Z1 कॉन्जुगेट इज 1 by Z1, सिमिलरली यू कैन राइट Z2 कॉन्जुगेट इज 1 by Z2। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ये भी मॉड 1 है। सो अगेन इट इज गिवन इन प्रॉब्लम दैट इज मॉडुलस ऑफ 1 by Z1 प्लस 1 by Z2 प्लस 1 by Z3, ये कितना है? 1 के बराबर है। क्लियर? तो यहाँ से यदि मैं ऐसे लिख दूँ 1 by Z1 कितने के बराबर है? Z1 कॉन्जुगेट। सो वी कैन इजीली राइट Z1 कॉन्जुगेट। 1 by Z2 इज Z2 कॉन्जुगेट प्लस 1 by Z3 इज Z3 conjugate is equal to 1. Here, and this can also be written as modulus of Z1 plus Z2 plus Z3 whole conjugate is equal to 1. क्योंकि आपको पता होगा कॉन्जुगेट का रूल है कि एडिशन में यदि कोई भी कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो
तो वो ब्रेक हो जाते हैं। तो जो यहाँ पे तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट को मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल कॉन्जुगेट। और यहाँ से सिंपली ये इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि इसका मतलब हो गया कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना होगा, 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ Z इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ Z कॉन्जुगेट। लाइक ऊपर कॉन्जुगेट हो या हटा दो, मॉडुलस सेम ही रहता है, ठीक। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 भी 1 ही होगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ Z जितना होता है उतना ही मॉडुलस ऑफ Z कॉन्जुगेट भी होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट लगा हुआ है, उसका जितना मॉडुलस होगा उतना ही मॉडुलस, कॉन्जुगेट हटा भी दे तब भी होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है हमारा इजिली सॉल्व। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना होता है, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत इन सब प्रॉब्लम्स को करने के लिए होती है। प्रॉब्लम नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the complex number z1 and z2 satisfy modulus of 1 minus z1 conjugate z2 whole square minus modulus of z1 minus z2 whole square is equal to k times 1 minus modulus of z1 whole square into 1 minus modulus of z2 whole square। तो k की वैल्यू मुझे बतानी है कि यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ तो इसका मतलब इसको सबसे पहले ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। वही फॉर्मूले यूज करने हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ रखे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे तो मॉडुलस ऑफ Z होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि Z1 का मॉडुलस का होल स्क्वायर आ गया है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर होता है Z कॉन्जुगेट, ठीक है ना। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर इज नथिंग बट Z कॉन्जुगेट। तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लीजिए ये Z है पूरा का पूरा, है ना, उसका होल स्क्वायर है। तो इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 होल कॉन्जुगेट दैट इज Z कॉन्जुगेट, ठीक है। मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर इज Z कॉन्जुगेट। सो मॉडुलस ऑफ दिस, मान लीजिए पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको यदि मैं Z कह दूं, तो मॉडुलस ऑफ Z होल स्क्वायर इज Z कॉन्जुगेट। सो दिस नंबर होल स्क्वायर का जो मॉडुलस होगा वो कैसे लिखा जा सकता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉन्जुगेट। सिमिलरली दिस कैन आल्सो बी रिटन एज Z1 माइनस Z2 into Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टी है वो हम लगाते हैं। तो ये तो आपका रहा 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2, और ये हो जाएगा 1 कॉन्जुगेट। तो 1 कॉन्जुगेट जो होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 पे कॉन्जुगेट आएगा तो 1 ही आएगा, माइनस Z1 कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। मतलब ये ऐसे समझ लीजिए पहले तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा, मतलब दोनों पे ब्रेक हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2, और फिर हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला दैट इज Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। वो यहाँ लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट माइनस ये फिलहाल ऐसे ही लिख लेता हूँ कुछ स्टेप्स तक, क्योंकि इधर थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 इंटू 1 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये नंबर्स ही हैं और नंबर्स में किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे हम रियल नंबर में करते हैं उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 1 इंटू दिस नंबर दैट इज Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 प्लस माइनस माइनस प्लस दैट इज Z1 Z1 कॉन्जुगेट Z2 Z2 कॉन्जुगेट।
क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लाइक z1 इंटू z2 इक्वल टू z2 इंटू z1। तो z1 कॉन्जुगेट z1 एक जगह लिख लिया और z2 कॉन्जुगेट तो एक जगह लिख लिया, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस ये जो पूरा है वो क्या हो जाएगा, z1 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट z2 प्लस z2 कॉन्जुगेट, ऐसा आ जाने वाला है। तो यहां से सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो आप जैसे देखोगे तो ये माइनस z1 कॉन्जुगेट है, z2 कॉन्जुगेट है, और यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस z2 कॉन्जुगेट, तो ये और ये कैंसल आउट हो जाने वाला है। सिमिलरली माइनस z1 कॉन्जुगेट z2 है और इधर आएगा माइनस माइनस प्लस z2 कॉन्जुगेट, तो ये भी कैंसल आउट हो जाने वाला है। तो अपने पास जो बचने वाला है वो क्या है, 1 और ये प्लस। अब z कॉन्जुगेट जो होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ z², तो ये क्या हो जाएगा, z1 कॉन्जुगेट इज मॉडुलस ऑफ z1² और z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z2² माइनस मॉडुलस ऑफ z1² माइनस प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z2²। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आने वाला है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z1², एक जगह लिख लेता हूं, ठीक है। और दूसरा पार्ट में बचेगा क्या, मॉडुलस ऑफ z1² मॉडुलस ऑफ z2², और इसमें से मॉडुलस ऑफ z2² यदि कॉमन ले लें प्लस मॉडुलस ऑफ z2² यदि कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ z2² कॉमन लें, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ z2² कॉमन लें, तो यहाँ पे 1 बचेगा और इधर माइनस आएगा मॉडुलस ऑफ z1²। क्लियर? समझ लीजिए, लिख सकते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z1², यहाँ से इसमें भी है इसमें भी है, तो वो कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z1² कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 और इधर बचेगा मॉडुलस ऑफ z2²। क्लियर? अब इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई बाहर में दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है और इधर कितना है, k है, तो k की वैल्यू ऑब्वियसली है, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट k की वैल्यू क्वेश्चन में जो है वो 1 होनी चाहिए, तभी ये दोनों बराबर है। क्योंकि 1 वैल्यू के लिए लाइक k का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे इस पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, दिस इनटू दिस, वो तो यहाँ दिया ही हुआ है बट उसके साथ k दिया हुआ तो पूछा जाता है कि k की वैल्यू कितनी होगी, तो k की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है हमारा सॉल्व। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लेट z1, z2 be a complex number such that modulus of z1 plus z2 equal to √3 and modulus of z1 equal to modulus of z2 equal to 1, then compute the value of modulus of z1 minus z2। तो यदि आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का जो फॉर्मूला होता है, मतलब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला यदि आपको पता हो तो वो कितना होता है, वो होता है मॉडुलस ऑफ z1² प्लस मॉडुलस ऑफ z2² माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z2 कॉन्जुगेट। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ करवाया था पिछले क्लासेस में भी, तो एक बार देख लीजिएगा कॉपी में, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो मॉडुलस ऑफ z1 तो अपने को पता है, मॉडुलस ऑफ z2 भी पता है, लेकिन ये पता नहीं है, तो इसलिए मुझे ये वाला जो एक्सप्रेशन गिवन है क्वेश्चन में, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 √3 होता है, उसको भी यूज करना है। तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का जो होल स्क्वायर होता है उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज मॉडुलस ऑफ z1² प्लस मॉडुलस ऑफ z2² प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z2 कॉन्जुगेट, ये फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू √3। इसका मतलब होता है कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का जो होल स्क्वायर है वो 3 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z1² प्लस मॉडुलस ऑफ z2² प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 3, and that simply implies that mod of z1² is modulus of z1 is 1, so modulus of z1² is also 1, so 1 plus 1 plus 2 times real part of z2 conjugate is 3, and from here we get 2 times real part of z2 conjugate is, ये 1 plus 1 कितना हो गया 2, 3 minus 2 is 1, and that simply implies that that is 2 times real part of z2 conjugate कितना है 1 के बराबर है। क्लियर? अब मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि
2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट भी पता है मुझे, मॉड ऑफ z1 पता है, मॉड ऑफ z2 पता है, तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस माइनस z2 होल स्क्वायर कितना होता है, वो होता है मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 conjugate, and that is 1 square plus 1 square minus 2 times of real part of z1 z2 conjugate is 1, so it is 1. So it is 1 plus 1 minus 1, so 1 1 cancel and it is 1, so the answer is 1. z1 minus z2 का जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। थोड़े फॉर्मूले आपको जरूर उसके याद रहने चाहिए और जो प्रॉपर्टीज हैं वो डेफिनेटली हमें अच्छे से पता होने चाहिए। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज it is given that z is equal to 1 plus I root 3 divided by 2i times cos pi by 3 plus I sin pi by 3, then find modulus of z and amplitude of z, or you can say that argument of this complex number। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यदि मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ तो यहाँ z कितना दिया हुआ है 1 plus I root 3 अपॉन 2i times cos pi by 3 प्लस I sin pi by 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2i टाइम्स cos pi by 3 that is 1 by 2 plus I times sin pi by 3 is root 3 by 2, and this is equal to 1 plus I root 3 divided by 2i into 1 by 2 that is I simply plus root 3 by 2 into 2 that is root 3 only I square, so root 3 I square, and that is 1 plus I root 3 divided by minus root 3 plus I, clear? That is the simplified form of this complex number. So first simplify it, and then when you have to find modulus of this complex number, modulus of z निकालना है, तो आगे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है। मॉडुलस ऑफ z का मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस I root 3 upon minus root 3 plus I, okay, and this is equal to modulus of 1 plus I root 3 divided by modulus of minus root 3 plus I, and that is equal to 1 plus I root 3 का मॉडुलस हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर, and the denominator is root under of minus root 3 square plus 1, and that is nothing but root 4 that is 2 by this is also 2 that is 1, so modulus of z कितना निकल गया 1 निकल गया, ठीक है। एम्पलीट्यूड दैट इज आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट निकालना है z का, तो कैसे निकालते देखिए, आर्गुमेंट ऑफ z और यू कैन से दैट एम्पलीट्यूड ऑफ z, बोथ आर सेम थिंग, एंड दैट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस I root 3 डिवाइडेड बाय माइनस रूट 3 प्लस I। तो क्या होता है फॉर्मूला आर्गुमेंट का, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 is equal to argument of z1 minus argument of z2, log जैसा रूल है, प्लस 2k पाई k यानी इंटीजर। अब ये जो फॉर्मूला है उसमें k तब आपको रोल में आता है जब नंबर जो ये होना चाहिए, ये वाला जो नंबर होना चाहिए वो पाई से बड़ा या तो माइनस पाई से छोटा आ जाए, जब तक उसके बीच में आता रहेगा तब तक k की वैल्यू 0 ही लेनी है। तो इसको मैं निकालता हूँ पहले, जरूरत पड़ने पे 2k पाई ऐड करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस I रूट 3 प्लस माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस रूट 3 प्लस I प्लस 2k पाई, क्लियर। अभी लिख लेते हैं, तो 1 प्लस I रूट 3 का जो होगा क्या मतलब आर्गुमेंट, वो कितना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पाई बाई 3 होगा, ठीक है ना, रूट tan इनवर्स रूट 3 दैट इज पाई बाई 3 माइनस ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये आपका जस्ट पाई माइनस पाई बाई 6 5 पाई बाई 6, क्लियर, प्लस 2k पाई, ये इस तरीके से आ जाएगा। इसका आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, निकाल करके लिख लीजिए 5 पाई बाई 6 आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 को 6 एलसीएम लेते हैं तो 3 2 6 2 पाई माइनस 5 पाई प्लस 2k पाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 पाई माइनस 5 पाई दैट इज माइनस 3 पाई बाई 6 प्लस 2k पाई, ये कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 आएगा,
और k की वैल्यू हम यहाँ पे 0 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये -π/2 जो है वो -π से +π के बीच का नंबर है। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें पता चलती है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट -π/2 है तो वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये जो नंबर है वो क्या है? क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट -π/2 है, तो -π/2 तो आर्ग्यूमेंट किसका होता है? जो निगेटिव y एक्सिस पे लाई करने वाला होगा। ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख रहे हो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -i -2i कुछ भी इस तरीके से आंसर में आने वाला है। लेकिन इसी को देखते हुए -π/2 आर्ग्यूमेंट है, यदि इसका तो मतलब होता है कि ये नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर है। क्लियर? तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाता है हमारा सॉल्व। क्लियर? सो दैट इज द मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और प्रॉब्लम्स और फिर मैं ड्यूमाइवर्स थ्योरम करवाऊंगा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है और इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं उसको। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।